بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دشمنوں کے ظلم کے نیچے دب گئی۔ ان کے دلوں میں خوف تھا، ان کی بستیاں غیر محفوظ تھیں اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والے ایک عظیم واقعے کی سچی داستان سنیں گے۔ یہ ہے طالوت اور جالوت کا ایمان افروز واقعہ، ایک ایسی داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح صرف بڑی تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پر سچے بھروسے سے ملتی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا گیا۔ بنی اسرائیل نے کئی مرتبہ اللہ کے احکامات سے غفلت برتی، ان کی کمزوریاں بڑھتی گئیں، آپس کے اختلافات بھی بڑھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن قومیں ان پر غالب آنے لگیں۔ ان دشمنوں میں ایک طاقتور لشکر بھی تھا جس کا سردار جالوت تھا۔ وہ اپنی طاقت، اپنے بڑے لشکر اور اپنے رعب کی وجہ سے مشہور تھا۔ بنی اسرائیل اس کے خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے دلوں سے ہمت کمزور ہو چکی تھی اور انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں دوبارہ متحد کر سکے۔ اسی بے بسی کے عالم میں بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ یہ درخواست معمولی نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے والی تھی۔ لیکن کیا بنی اسرائیل واقعی اس آزمائش کے لیے تیار تھے؟ کیا وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے شخص کو ان کا بادشاہ منتخب فرمائے گا؟ بنی اسرائیل اپنے نبی کے سامنے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دشمن کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کوئی ایسا رہنما مل جائے جو انہیں ایک بار پھر متحد کر دے۔ انہوں نے اپنے نبی سے عرض کی، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے ان سے ایک نہایت اہم سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو کیا تم واقعی لڑو گے؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ زبان سے دعوی کرنا آسان ہوتا ہے، مگر آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بنی اسرائیل نے پورے اعتماد سے جواب دیا، ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ ان کے الفاظ میں جوش تھا، عزم تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے واقعی جہاد کا حکم آیا تو افسوس، ان میں سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے، صرف چند ایمان والے ثابت قدم رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت دعووں کی نہیں بلکہ عمل اور ثابت قدمی کی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے کس شخص کو منتخب فرمائیں گے؟ کیا وہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہوگا؟ کیا وہ بہت زیادہ مالدار ہوگا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو چنیں گے جس کا انتخاب سب کو حیران کر دے؟ بنی اسرائیل بے چینی سے اپنے نبی کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یقیناً بادشاہ کسی بڑے خاندان سے ہوگا یا وہ شخص بہت زیادہ مال و دولت کا مالک ہوگا۔ مگر پھر وہ اعلان ہوا جس نے پوری قوم کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے لوگ اس فیصلے سے خوش نہ ہوئے۔ انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، طالوت ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ بادشاہی کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں اور انہیں تو بہت زیادہ مال بھی حاصل نہیں۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ حکومت اور قیادت صرف دولت یا بڑے خاندان کی بنیاد پر ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسانوں کے معیار سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے طالوت کو تم پر منتخب کیا ہے اور انہیں علم اور جسمانی طاقت میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا اقتدار عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ الفاظ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت، قیادت اور کامیابی صرف مال و دولت سے نہیں بلکہ علم، صلاحیت اور اللہ کے منتخب کیے جانے سے ملتی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کر رہے تھے۔ تب ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انتخاب کی ایک واضح نشانی بھی عطا فرمائیں گے تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ وہ نشانی کیا تھی اور تابوت سکینہ کی واپسی نے پوری قوم کو کیسے حیران کر دیا؟
जब बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहत पर एतराज किया तो उनके नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसी निशानी अता फरमाएंगे जिसके बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। वो निशानी थी ताबूतुस सकीना। ये वो मुबारक संदूक था जिसे बनी इसराइल नहायत इज्जत की निगाह से देखते थे। अल्लाह ताला ने उसे उनके लिए सुकून और इत्मीनान की अलामत बनाया था। वक्त गुजरने के साथ ये संदूक इनसे छन गया और उसका खो जाना इनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक अजीम निशान जाहिर फरमाया। कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ताबूतुस सकीना को लेकर आए। जब बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। इन्हें यकीन हो गया कि तालूत की बादशाहत अल्लाह ताला की तरफ से है, न कि किसी इंसान का फैसला। ये एक वाज़िह पैगाम था कि जब अल्लाह ताला किसी को किसी जिम्मेदारी के लिए मुंतखब फरमाता है तो उसकी तायीद के असबाब भी पैदा फरमा देता है। अब तालूत ने लश्कर को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। एक बड़ा सफ़र उनके सामने था और दुश्मन का सामना करीब आ रहा था, लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेना चाहते थे। ये इम्तिहान तलवारों से नहीं बल्कि प्यास से लिया जाने वाला था। तालूत अपनी फौज के साथ दुश्मन की तरफ रवाना हुए। उनके साथ हजारों अफराद थे। हर शख्स के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो जालूत के लश्कर को शिकस्त दे, लेकिन अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों को आजमाए बगैर कामयाबी अता नहीं फरमाता। रास्ते में एक दरिया आया। इसी वक्त तालूत ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी फौज से फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारा एक दरिया के जरिए इम्तिहान लेने वाला है। जो शख्स इस दरिया से खूब पानी पी लेगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा, और जो इससे न पिए या सिर्फ एक चुल्लो भर पानी ले वो मेरे साथ होगा। ये बज़ाहिर एक आसान हुक्म था, लेकिन शदीद गर्मी और सफर की थकन ने इस आजमाइश को बहुत मुश्किल बना दिया। जब लश्कर दरिया तक पहुंचा तो बहुत से लोग अपनी प्यास पर काबू न रख सके। उन्होंने खूब पानी पी लिया, हालांकि उन्हें मना किया गया था। सिर्फ एक छोटा सा गरवा ऐसा था जिसने अल्लाह ताला के हुक्म को मुकद्दम रखा। उन्होंने सब्र किया, अपनी ख्वाहिश पर काबू पाया और सिर्फ इतना ही पानी लिया जितनी इजाजत थी। यही वो लोग थे जिनके ईमान की मजबूती इस इम्तिहान में जाहिर हुई। अब लश्कर बहुत छोटा रह गया था, लेकिन उन्हीं मुखल्लिस लोगों के साथ तालूत आगे बढ़े। अब सामने था ताकतवर जालूत का अजीम लश्कर। क्या इतनी छोटी जमात उतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकती थी? जब तालूत और उनके मुखलिस साथी मैदान जंग के करीब पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर बहुत से लोगों के दिल कांप उठे। दूर दूर तक जालूत का अजीम लश्कर नजर आ रहा था। हजारों सिपाही, मजबूत हथियार, बुलंद झंडे और हर तरफ ताकत का मजाहिरा था। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इस लश्कर को शिकस्त देना नामुमकिन है। ये मंजर देखकर कुछ लोगों ने कहा, आज हम में इतनी ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला कर सकें। लेकिन उन्हीं लोगों के दरमियान ऐसे अहले ईमान भी मौजूद थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज सुनकर मुखलिस मुजाहिदों के दिलों में एक नई हिम्मत पैदा हुई। उन्हें यकीन हो गया कि फतह हथियारों की कसरत से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद से मिलती है। फिर वो सब नहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम जमा दे और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये दुआ उनके दिलों की गहराई से निकली थी। वो जानते थे कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अब मैदान जंग सज चुका था। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने खड़े थे और तारीख का एक अजीम मार्का शुरू होने वाला था। इसी जंग में अल्लाह ताला एक ऐसे नौजवान के जरिए ऐसा फैसला रकम फरमाने वाले थे जिसका नाम क़यामत तक याद रखा जाएगा। मैदान जंग तैयार था। एक तरफ तालूत का लश्कर था जो तादाद में कम था, मगर इनके दिल अल्लाह ताला पर ईमान और भरोसे से मजबूत थे। दूसरी तरफ जालूत का ताकतवर लश्कर था जिसे अपनी कुव्वत और तादाद पर बहुत गुरूर था। जंग शुरू हुई तो दोनों लश्कर एक दूसरे से टकरा गए। हर तरफ शोर बुलंद हुआ, मगर अहले ईमान के दिलों में एक ही यकीन था, असल मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इसी मार्के में एक नौजवान भी मौजूद था जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था। यह सिर्फ एक जंगी फतह नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की मदद की एक अजीम निशानी थी। जिस दुश्मन के बड़े लश्कर से लोग खौफजदा थे, अल्लाह ताला ने उसी के मुकाबले में अपने एक बंदे के जरिए फैसला फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही और हिकमत अता फरमाई और इन्हें वो इल्म अता किया जो अल्लाह ताला ने चाहा। यह वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ताकत का असल सरचश्मा तादाद
दौलत या ज़ाहिरी सामान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मदद है। लेकिन इस वाक़ये में अभी बहुत से ऐसे सबक बाकी हैं जो हमारी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, तालूत और जालूत का ये वाक़या सिर्फ माजी की एक जंग की दास्तान नहीं, बल्कि हमारे लिए ईमान, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसे का एक अजीम सबक है। इस वाक़ये में सबसे पहली बात हमें ये सीखने को मिलती है कि अल्लाह ताला की मदद के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी कमज़ोर है। जालूत के पास एक बड़ा लश्कर था, ज़ाहिरी ताकत थी और जंग का सामान भी था। दूसरी तरफ अहले ईमान की तादाद कम थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई तो कम तादाद होने के बावजूद अहले ईमान कामयाब हुए। सिर्फ ज़बान से ईमान का दावा काफ़ी नहीं। बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा था कि अगर जंग का हुक्म दिया गया तो वो ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो बहुत से लोग पीछे हट गए। इससे हमें मालूम होता है कि असल ईमान वो है जो आजमाइश के वक्त इंसान को साबित कदम रखे। दरिया के इम्तिहान में बहुत से लोग अपनी ख्वाहिश पर काबू न रख सके, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी की वो आगे बढ़ने वाले मुखलस लोगों में शामिल हुए। आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी आजमाइशें आती हैं, कभी मुश्किलात की सूरत में, कभी परेशानी की सूरत में, और कभी ऐसी ख्वाहिशात की सूरत में जिनसे बचना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के लिए सब्र करना कभी ज़ाया नहीं जाता। क़ियादत का मयार सिर्फ दौलत नहीं। बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहत पर एतराज़ किया था कि इन्हें ज़्यादा माल नहीं दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म और जिस्मानी क़ुव्वत में विसाअत अता फरमाई थी। इससे मालूम होता है कि इंसान का असल मकाम सिर्फ माल व दौलत से नहीं होता। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी हिकमत के मुताबिक मुंतखब फरमाता है, और सबसे अहम सबक ये है कि फ़तह अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कामयाबी के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा भी रखना चाहिए। जब अहले ईमान ने मैदान जंग में कदम रखा तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना अफ़रिग अलैना अरिना सबरन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। यानी हमारे रब, हम पर सब्र इंडील दे, हमारे कदम जमा दे और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। प्यारे नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मुश्किल है, अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करें, नमाज की पाबंदी करें, दुआ करें, सब्र करें और हलाल रास्ते में अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि जिस अल्लाह ने कम तादाद वाले अहले अमान को जालूत के बड़े लश्कर के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाई, वो हमारे हालात भी बदलने पर कादिर है। अगर आपको तालूत और जालूत का ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, और इस्लामी तारीख और कुरान मजीद में बयान किए गए मजीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने, इस पर अमल करने, सब्र करने और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर उस वीडियो में इस वाक़ये को बयान करने में कोई गलती या कमी बेशी हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे, आमीन। हमारी कोशिश होती है कि आप तक दरस्त और सबक आमोज बात पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खीरा।